عمران خان صاحب کی پارٹی کو اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو اس حملے میں پیش تھے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ عدالتیں کیوں اتنا کھل کر ریاست کے خلاف فیصلے دے رہی ہیں جی؟ عدالتیں جو ہے نا وہ مراسم کو نا پولی ٹول کی وجہ آ رہی ہے، ایک دم کھچی جانی ہر چیز، ڈونٹ وری، نہ بے صبر ہوں، یہ معمولی کام نہیں ہوا 9 مئی کو، یہ عدالتیں بھی کسی پالیسی کے تحت چل رہی ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، ایک تو میں نے جب پچھلی دفعہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ عدالتیں ہوں، بیوروکریٹ ہوں، یا آرمی کے اندر ہوں، یا کوئی بھی ادارہ ہو، ان کی بیگمات جو ہیں ان کو کوئی اللہ کی مار ہے، اور زن مرید جو ہوتے ہیں زیادہ، اور پاکستانی شوہر تو زن مرید پوری دنیا میں مشہور ہے، اس سے بہترین شوہر دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ باہر والی گوریاں کالیاں بھی جو کہتی ہیں کہ شوہر پاکستانی ہونا چاہیے، تو یہاں پہ اب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ گھر کا ان کو دباؤ ہے، کچھ ان کو اور چیزیں جو ان کی جو یہ اب میں کیا سینسر بورڈ والے آ جائیں گے، ان کی ویڈیوز یہ سوشل میڈیا، یہاں پہ کوئی سینسر نہیں ہے۔ نہیں، میں بتانے لگی ہوں نا کہ ہماری، اگر آپ کسی ایک ادارے کی بات اگر یہ کرے کہ 9 مئی کے بعد بھی اگر کوئی لچک دکھا رہا ہے، اور 9 مئی کے بعد بھی اگر کوئی اس تحریک انصاف، جس کا آپ نام تحریک بے انصاف ہونا چاہیے، اگر اس کے ساتھ کوئی بے انصافی والے معاشرے کے ساتھ رویہ کر رہا ہے، تو یقیناً ان کی کچھ کمزوریاں کچھ اداروں کے پاس ہے، ان کے گھر والیوں کی کچھ چیزیں ہیں، وہ گھر سے مجبور ہیں، ورنہ نظر سب کو آ رہا ہے کہ 9 مئی کو کیا ظلم ہوا ہے، کیا بغاوت ہوئی ہے، کیا غداری ہوئی ہے۔ اچھا 9/11 میں یہ سارے معاملے لگ گئے تھے، ان کو ظلم نظر آتا تھا پوری دنیا کو کہ جناب 9/11 ہو گیا، تو 9 مئی جو ہے وہ پاکستان یتیم ہو گیا اپنے لوگوں کے۔ ہمارا ظلم کیا ہمارے ساتھ ہوا؟ ہمارا دکھ تو سمجھو پاکستانیوں، بھاڑ میں جائے ساری سیاسی جماعتیں، ایک طرف کر دو، ابھی صرف ایک بات فوکس، ہمارا دکھ تو سمجھو۔ ہمارا دکھ یہ ہے کہ 9/11 کا سانحہ باہر والوں نے کیا تھا، کہ 9 مئی کا گھر کے اندر آستین کے سانپوں نے کیا ہے، ہم تو کسی کے آگے رونے جوگے بھی نہیں رہے۔ تو اب جن لوگ اس میں بھی لچک دکھا رہے ہیں وہ گھر سے کانے ہیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ، ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کی صحت پر وویلا ہے کہ ان کی صحت بڑی خراب ہے، اور آج نے آپ نے بڑا ایک مزے کا کالم لکھا ہے، اور آپ نے ان کو پھولن دیوی کہا ہے جی۔ اب بتائیں گی ذرا، پھولن دیوی تو ایک بہت مشہور تھی، اور وہ بڑے، انہوں نے قتل وتل اور بڑی ان کے بڑے چرچے تھے انڈیا میں، اور آپ نے یاسمین راشد صاحبہ کو پھولن دیوی کہہ دیا ہے بھئی۔ اور میں اس کو کیا نام، سلطان رائی، فیمیل سلطان رائی کہہ دوں، کیا نام دوں؟ پھولن دیوی تو اس سے بہت زیادہ بہتر تھی، وہ تو ایک بڑی بہادر دلیر ہوگی، اس کو چھوڑ کے ایک سمپل، یہ بیمار ہے، یہ تو وہ ہاتھی کے اوپر چڑھ کے، وہ اتنی بڑی پجیروں کے اوپر چڑھ کے، اوپر نیلے رنگ کا جوڑا پا کے اتنے چڑھ کے بیٹھ کے، پورے نال لشکروں اپنا لے کے کور کمانڈر وال جا کے اتنے اعلان کرن دے کہ میں کور کمانڈر دے گھر چلی ہوں، اوتھے کی اوتھے اونوں جنرل نو سلوٹ مارن گئی سی۔ اس کا وہاں جانے کا کیا مقصد تھا؟ اور بیمار کون سی بیماری؟ کینسر اس وقت نظر نہیں آیا جب یہ کور کمانڈر کے گھر کی طرف جا رہی تھی، اور چڑھائی چڑھنے جس کو کہتے ہیں، اس وقت تو یہ پھولن دیوی بنی ہوئی تھی، اس وقت تو اب پنجابی کا لفظ میں یہاں نہیں بول سکتی، جو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کیا بنی ہوئی تھی، اور اب یہ بیمار ہو گئی۔ دیکھو جو 9 مئی کو ہوا ہے، میری پاک افواج بھی سن رہے ہیں، میری پاکستانی قوم، بھلے اس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، سن لے، خدا پاک کی قسم اگر 9 مئی کے لوگوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا، تمہیں گھر آ کے عراق، ایران، افغانستان کی، لبنان کی طرح تمہاری ماں بیٹیاں نہ نکال کے گئے تو میرے الفاظ یاد رکھنا، کہنے نے کہ پہلے دن ہی بلی مار دے اگلے دی۔ اگر 9 مئی کو تم لوگوں نے نہ یہ کیا تو تم بھول جاؤ کہ یہی امریکہ ہوگا اور تمہارا ملک ہوگا اور تورا بورا ہوگا۔ ایڈی آئی ہے لاڈو، پھولن دیوی سے بھی بڑا کوئی لفظ ہے تو مجھے بتا۔ یہ عورت جب جا رہی تھی، اس کا کیا کام ہے؟ اس وقت سے کینسر یاد نہیں آیا؟ مردی تار رہندی، اور عورتوں کا کام کیا ہے؟ جہاد والی، تم غزوہ احد والی عورتوں کو جانتے ہو وہ کیا تھی؟ انہیں بھی اجازت نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہیں خواتین نے کہا کہ ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر تم مرہم پٹی کرو، تم زخمیوں کی مدد اس طرح کرنا۔ انہوں نے کیا سی پھولن دیوی بن کے اگے جا کے مردہ سے لڑو، یہ جہاد تھا؟ یہ کیا بنی ہوئی ہیں؟ کس کون سے ہمارے معاشرے، پاکستانی معاشرے کہ ہماری عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں یوں گنڈوں کی طرح سڑکوں پہ نکلے
हया करती, ना इन्हें अपने कपड़ों की होश है ना लिबास की, और मुर्शद बनाया एक गैर मर्द नू। जाके अपने बाप नू मुर्शद बनाओ, अपने शौहरा नू मुर्शद बनाओ। तुसी भी तो गैर मर्दा नू जाके मुर्शद बना दिया हो, पीर तुसी मन दिया हो। मतलब एक कोई तवाजन है कि नहीं? क्या पाकिस्तान बनाते हुए हमारी औरतों ने काम नहीं किया? क्या मुस्लिम लीग की खातन ने, फातिमा जिन्ना से लेके सब हमारे खानदान, मेरी दादी, मेरी फूफी, क्या सब ने पाकिस्तान बनाने के लिए हिस्सा नहीं लिया? लेकिन कोई तहजीब होती है, कोई लिमिट होती है। को उठ के तुम अपने मुल्क पे हमलावर हो जाओ और तुम बोलो कि तुम जहाद करने चले हो, तुम इनकलाब लाने लगी हो। लानत है तुम्हारी ऐसी तब्दीली पे। हाँ, तब्दीली एक ही आई है, मेकअप से पहले और मेकअप के बाद। हुन जेल च जाके तब्दीलियां वेखो इन्हां दी। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ जी कि आपके जज्बात जो हैं वो एक आम पाकिस्तानी के हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जो आप फरमा रही है बिल्कुल ठीक है। वो एक पजारों पर बैठकर जिस तरह जा रही हैं, पजारों पर बैठकर जो कर रही थी, वो किसी भी तरह से उसका जस्टिफाई नहीं कहता। मैं अपनी फौज को माफ नहीं करूंगी अगर उसने 9 मई के सहाने में जो लोग इन्वॉल्व है, मुलव्वस है, चाहे उन्होंने इशारा दिया, प्लानिंग बनाई या उन्होंने कुछ भी किया, उनमें से किसी को उसने माफ किया। किस अमेरिका ये किससे मदद मांग रहे हैं? ये ह्यूमन राइट्स किस मामले से ये मांग रहे हैं? उस मामले से मांग रहे हैं जिसमें मैं बैठी हूँ। मैं 9/11 में भी इसी तरह गरजती रही। हाँ, मैंने इनके इदारे भी फेस किए हैं, यहाँ पे किए हैं। मैं दिल से बोल रही हूँ, मैंने जुल्म यहाँ सहे हैं किसी मुल्क में। क्यों? कि इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया 9/11 के बाद, जबकि कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं था 9/11 के सानिया में। इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ भी जुल्म किए, काफिया सिद्दीकी की सिर्फ आपको, वो तो बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने अपनी आंखों से हजारों अपने बेगुनाह पाकिस्तानी जंजीरों में बंधे हुए, जेलों में और जहाजों में बांध के रिपोर्ट होते हुए देखे। उस वक्त इनकी ह्यूमन राइट्स, उस वक्त उनकी ये सब चीज, हालांकि बाहर से। और फिर कोई फौजी, ये जिस फौज को ये गालियां देते हैं, जो कल को निके का अब्बा था, वो तेरा अब्बा था, आज निका जड़ा हो तेरा अब्बा मतरया हो गया। इनके अब्बे देख, इनकी फौज देख अमेरिका की। अगर आप गौर से सुनो पाकिस्तानियों, अमेरिकी का फौजी कितना कीमती है इनके लिए। अगर किसी फौजी के घर के बाहर मामूली तोड़ फोड़ भी हो ना, तो 2 साल की कैद है। मामूली तोड़ फोड़ $500 तक की हो तो 2 साल की कैद है और जुर्माना अलग। और अगर किसी फौजी तनसीबात पे मामूली सी तोड़ फोड़ भी हो ना, तो उसकी 10 साल की कैद है और 1 लाख का जुर्माना अलग है। कुछ आके फौजी के ऊपर हमलावर हो तो ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜੁਗ ਚ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚਾਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚਾਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚਾਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ सिर्फ एक कुर्सी के लिए, सिर्फ एक कुर्सी के लिए। मैं किसी जमात से मैं रुकन नहीं हूँ, चाहे मुझे पटवारी बोलो, चाहे मुझे यूथिया बोलो, इससे भी कोई गलीज लफ्ज है तो बोलो, मैं बड़ी खुश हूँ। लेकिन मेरा मुल्क और मेरे मुल्क की फौज, खबरदार जो आंख उठा के भी देखा मैं चीर के रख दूंगी। अल्लाह ताला की जात हमारे मुल्क पर, हमारी फौज पर रहम करे। अल्लाह ताला की जात मदद फरमाए इस इमरानी फितने के खिलाफ। पाकिस्तानी, उसे बड़ा मान था कि मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी, मैंने देखी है कोविड में ओवरसीज पाकिस्तानी। जाओ मेरे फेसबुक के पेज या मेरी पुराने वो 2-3 साल की ना जाके वीडियोस निकालो, किस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी को हमने निकलवाया, कहां से। जब उस वक्त इनको कोई ख्याल नहीं आया था, जब मिडल ईस्ट के मजदूर सड़कों पे रुल रहे थे कोरोना की वजह से, जब जॉबलेस हो गए, होमलेस हो गए, फ्लाइटें नहीं चलती थी, किसकी हुकूमत थी? इसी इंसाफ की हुकूमत थी कोरोना के वक्त। मैंने ओवरसीज के साथ वो वक्त गुजारा है, उनके आंसू देखे हैं। अगर वो बेशरम होंगे, अगर वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके साथ कोरोना के वक्त इसी शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर ने और लोगों ने, जुल्फी बकारी ने, इन सब ने जो यतीमों वाला सलूक किया था, अगर आज वो ओवरसीज पाकिस्तानी समझे कि ये उनका मुर्शद है, एक वक्त याद करो, क्या ये ओवरसीज पाकिस्तानी उस वक्त तुम्हें अपने नहीं लगे? और फिर जब तुमने ये कहा कि मैं हुकूमत में आऊंगा, हमने तब्दीलियों को क्यों तुम्हारी को सपोर्ट किया था कि तुम निजाम बदलोगे? तुमने कहा मैं जब हुकूमत में आऊंगा तो उस वक्त मैं ओवरसीज पाकिस्तानी एक कॉल पे इतना चंदा देंगे कि मैं मुल्क से कर्जा उतार दूंगा। कर्जा लाया तू
और तुम समझते हो 1.5 साल में मुल्क मकरूज हो गया, इतनी जल्दी मकरूज हो गया मुल्क। अभी तो 25,000 अरब डॉलर तो तुमने अभी अगले साल का इस मुल्क का हमने कर्जा उतारना है, तो फिर क्यों ना तुमने कॉल दी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, क्यों ना तुमने मुल्क से वो कर्जा उतारा। वो जितने लॉलीपॉप तुमने ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ वो तेरे से लाड करते हैं जो अपने घर में ऐश, ये चाय का कप, कॉफी का कप, फायर प्लेस लगी होती है, खिड़की से स्नो देख रहे होते हैं, ए बेशरम नहीं जड़े तेरे नाल ने कोई भी, और सिटीजन है। ये सारे वो हैं जिन्होंने यहाँ जदाते बनाई हैं, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, जिनके पास दूसरा पासपोर्ट है। ये कोई इनका ज़र मुबादला पाकिस्तान में नहीं है। वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिसके पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो चाहे यूरोप में है, चाहे मिडल ईस्ट में है, और जो ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजता है, उनके साथ कोरोना में तुमने क्या किया था? क्या तुम्हारी याददाश्त कमजोर है? मेरी नहीं। तुम्हारे कौम की याददाश्त कमजोर की, मेरी नहीं। मैंने और निकाल के देखो मेरी वो वायरल वीडियो भी, जब यहाँ पे न्यूयॉर्क में सबसे पहले कोरोना आया, और मेरे खुद घर के 3-4 डॉक्टर हैं जो ड्यूटी दे रहे थे, और यहाँ पे 2 लाख बंदा कोरोना से मरा। उसमें मेरे कितने कब्रिस्तान भर गया, जिसमें मेरी बेटी कोरोना की वजह से तो नहीं, वो रोड एक्सीडेंट की वजह से अल्लाह को प्यार हुई, लेकिन मैं कब्रिस्तान तो जाती हूँ ना हर हफ्ते। तुम लोगों का तो कब्रिस्तान से नहीं कोई ताल्लुक होगा। कब्रिस्तान भर गए, जगह नहीं थी कोरोना के साथ। उस वक्त तक इसने, इमरान खान ने और जुल्फी बुखारी ने ताज़ियत की एक कॉल, एक ट्वीट नहीं की थी। फिर तैयबा ज़िया गर्जी थी न्यूयॉर्क से, और तैयबा ज़िया ने कहा था बगैर तो ओवरसीज के मामियों मर गए यहाँ पाकिस्तानी कोरोना में, एक ताज़ियत तो कर दो। मेरी याददाश्त कमजोर नहीं, तुम लोगों की याददाश्त कमजोर है। दुख और तकलीफ वाली बात है जो आप बता रहे हैं, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 1.5-2 साल पुरानी बात है, और आज फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को रगलाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, उनसे मदद मांगी जा रही है। अच्छा, इमरान खान साहब जो है, जाहिर है वो मौजू बहस है, आप काफी पुराना जानते हैं, ये मर्दों पर इल्जाम लगाया करते थे जब वो जेल में जाते थे, तो उन्होंने जो उनकी खातिर इस वक्त खवातीन जेल हैं, उन पर इस किस्म का इल्जाम लगा दिया है कि वो जेल से बाहर आकर भी शायद लोगों का सामना ना कर सकें। क्या इस हद तक भी इंसान जा सकता है? हाँ, वो तो जा सकता है। उसने बनी गला जमान पार्क में यही कुछ देखा है, डी चौक धरने में जो कुछ उसने देखा है, जो कुछ वो करते रहे हैं, जो कुछ, तो वो समझते हैं कि सारे यही कुछ करते होंगे अंदर जेलों में। कसूर उसका तो कोई नहीं बेचारे का ना। कोई और सवाल करो। अमेरिका से खुल्लम खुल्ला मदद मांगी जा रही है, आपने अभी इसमें कहा भी, क्या फौज के खिलाफ मदद मांगी जा रही है? इमरान खान साहब किसके खिलाफ मदद मांग रहे हैं? ये उनका है, अपने मामिया को मांगे, ससुराल है उसका, यहाँ उसने बच्ची पैदा की है, ये उनसे ससुराल से मदद मांग रहा है। इसके 2 ससुराल हैं, एक यूके और एक अमेरिका, एक यहूदी और एक नसारा। ये 2 नसारा था जवाई, ये मदद तो मांगी, तो ससुराल का काम है ना जवाई को बचाना। कोई और सवाल करो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये अमेरिका में भी इस किस्म का एक हमला हुआ था, अमेरिका में बलवाइयों ने हमला किया था कैपिटल हिल पर, वहां पे उन लोगों को कुछ सजा मिली है? तो अब ना, ये जिन्होंने 9/11 कहा, और मैंने सबसे पहले कहा कि ये 9/11 9 मई को जब हुआ था, तो सदमे से मिल गए, तो 9/11 हो गया। अब मैं ये पूछती हूँ, ये जो तुमने सवाल किया है कि जब 9/11 हुआ था तो उनके साथ क्या गिरफ्त जो हमारे साथ तो हुई मुसलमानों के साथ, 9/11 के मुल्ज़िम, अरे ये लोग छोड़ते हैं किसी को? ये वो अभी तुम 9/11 की बात कर रहे हो, अभी ट्रंप की बात करो ना। अभी ये 2021 जनवरी में जब ट्रंप ने हमलावर हुआ था कैपिटल हिल पे, वो इसका भाई है ना, ये इमरान खान ते ट्रंप जड़े ने ना एक कौम दे मेले च बिछड़ गए सन। अच्छा जी, भाई हैं दोनों। ये ना जुड़वा भरा ने। ये मैंने सबसे पहले दिन कहा था कि दे आर ट्विंस, मेंटली भी और कैरेक्टर वाइज भी। और ये 2021 में जब इसने कैपिटल हिल पे हमला किया था, तो तुम सोचो कि इन्होंने उनको कैसे कैफरे किरदार तक अमेरिका ने पहुंचाया, कि सिर्फ वो जो स्पीकर नैन्सी पेलोसी की टेबल पे जिस एक शरपसंद पैर रख के बैठा था ना, उसी को सिर्फ 4-5 साल की कैद दे दी, सिर्फ पैर रख के, हमारी मेज पे पैर रखने की तौहीन पे। इससे अंदाजा लगाओ। और फिर जिसने कैपिटल हिल क्या जो सरगना था ना, जिन्हें फुलन देवी गड्डी ते बह के जा रही सी, इंज दा एक होर इत्थे सी ना, वो उसको 18 साल की सजा हुई है। मैं तुम्हें गूगल कर देख जाके, कैपिटल हिल के एक एक शरपसंद की सजा, जाके 9/11 तो तुमने सारा तोरा बोरा पूरी मुसलमान दुनिया बना के रख दी।
तो तुमने 9 मई में क्या किया? तो 4 जनानियां ते 8 बंदे अंदर दे के ते हाय तड़फ गए, हाय मर गए, हाय मासूम, हाय उदों दे मापिओ मर गए सी जवान नस्ल दे, जदों उन्हां दे पुत्तर धीआं रातां दिन बाहर रहिंदे सी। उस वक्त उन्हें शर्म नहीं आई। अब आके कहते हैं वो मासूम है। कोई कहता कोर कमांडर के घर ना मोर वेखन गया सी मेरा पुत्र, कोई कहता नहीं फुल बूटे वेखन गया। बगैर तो तुम्हें पता नहीं था जब तुम्हारे जवान बेटियां हम लोगों ने रेज हुए हैं। हमारा पाकिस्तान तो कौमी नजरिया पे हमारे माँ बाप ने भी हम औलादों को रेस किया हुआ है। हमें तो कभी मोहल्ले के घर में शादी मोहल्ले की ढोलकी पे नहीं जाने देते थे अकेली बेटी को। कौन से माशरा, कहां तक मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली पार्टी बना के बैठे हुए हो। ना है पाकिस्तान ताड़े प्यो दा है, ना है जिस्म ताड़ा है, ना मर्जी ताड़ी चलेगी। अभी मैं तुम दस दिया हूं 9 मई तो बात नहीं चलेगी। अब जो अभी भी जो प्लानिंग मनाते पे और मदद मांगते हो, इससे ह्यूमन राइट्स, इन अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स मांग रहे हो जो सिर्फ अपने लिए है। इसको जब पहले तूने तो आफिया सिद्दीकी भी मांगने के लिए एक की थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्शद जी तुसी ते प्रेस कॉन्फ्रेंस 2006 में वो ब्रिटिश वो जो सहाफी थी उसके साथ बैठ के तुमने तो तुम्ही ने तो मुर्शद जी बेनकाब किया था कि जी एक औरत की चीखों की आवाज आती है वहां से जेल से अफगानिस्तान के।